Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, S.P.C. Govt College, Ajmer. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इंसेक्ट बिहेवियर में जो लास्ट लेक्चर में मैं कलरेशन पढ़ा रही थी जिसमें हमने वेरियस टाइप के पिगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज के लेक्चर में मैं कलरेशन का सेकंड पार्ट लेने जा रही हूँ जिसमें हम इंटरफेरेंस कलर्स, डिफ्रैक्शन कलर्स, फिजियोलॉजिकल कलर चेंज एंड मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टर्न पे देखा कि कलर्स ऑफ द बॉडी डेवलप्स फ्रॉम नंबर 1 पिगमेंट्स, नंबर 2 इंटरफेरेंस एंड नंबर 3 डिफ्रैक्शन. Pigments we have already studied. Now we are going to see the interference. What is interference color? Some colors, they develop from the reflection of light of only certain wavelengths from a series of superimposed surface lying at variable distance and are called interference colors. इंटरफेरेंस कलर्स में क्या होता है कि देख ये कलर कैसे डेवलप होते हैं, ये लाइट के रिफ्लेक्शन से डेवलप होते हैं एक सर्टेन वेवलेंथ पे. द इंसेक्ट शो सम इंटरफेरेंस कलर्स सच एज brassy yellow in Lepidoptera, bronze in Scarabidae, Coleoptera, gold color in Cassidini, Coleoptera, and pupae of Denidae, Lepidoptera, and silver color in pupae of Denoidae, Lepidoptera. So this was about the interference colors. Now we are going to see the diffraction colors. What are diffraction colors? Diffraction colors, it is another mechanism of color production in which the light rays, they strike the edge of the groove or ridges and white light is split into its component spectral colors. In insects, diffraction mechanism produces iridescence of some beetle, Staphylidae and Scarabidae. Now we are going to see the color change mechanism. What are the mechanisms which helps in the color change phenomena? Color change mechanism in insects is of two. It works in two ways. Number 1, physiological color change, and number 2 is the morphological color change. The physiological color change is short term, उसका समय कम होता है. They are reversible. They are without involving synthesis of any new pigment. And number 4, they are reported only in few insect species. Whereas in morphological coloration, they are long term, they are irreversible, and they are involving in the production of new pigments. And number 4, they are observed in large number of insect species. Now, first of all, we are going to discuss in detail about the physiological color change. It involves the movement of the pigment in the epidermal cells along the path of microtubules, which is well evident in stick insects, Caricaceous, well evident in stick insect, Phasmida, grasshopper Orthoptera, and Damselfly Zygoptera. Secondly, these insects remain black during the night as the melanin granules move upward in the epidermal cells. They are closer to cuticle surface. At high temperature, the grasshopper and damselfly are often blue. जब टेम्परेचर हाई होता है तो ग्रासहोपर और डैमसेफ्लाई कैसी होती हैं? ब्लू होती हैं. while at low temperature they are always black. लो टेम्परेचर पे डैमसेफ्लाई हमेशा क्या होती हैं? they are always black. Number 4, Tyndall blue masking can be seen in the grasshopper
and then say fly. The grasshopper becomes blue during daytime as a result of tyndall scattering form from small granules of white leukoproteins and uric acid. At night, the blue is masked by the dispersal of large pigment granules amongst the small reflecting granules through the cells. In the brown species of stick insect, Cariaceous, the chromatophores granules they move towards outer surface at night and insect becomes darker. During the daytime, in this stick insect only, they migrate to the proximal area in the epidermal cells, due to which insect become pale. डे में इंसेक्ट कैसा हो जाता है? पीला. और रात के समय कैसा हो जाता है? ब्लैक. In the green specimen of stick insects never show change due to lack of ओमोक्रोम्स. इसके अतिरिक्त क्या होता है? ग्रीन स्पीसीज जो होती है स्टिक इंसेक्ट की, उसके अंदर कभी भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलता क्योंकि उसके अंदर ओमोक्रोम्स नहीं पाए जाते. इन दीज इंसेक्ट्स इट इज बिलीव्ड दैट द कलर चेंज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन. इन इंसेक्ट्स के अंदर कलर चेंज जो होता है ये किस में हेल्प करता है? थर्मो रेगुलेशन या बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के काम में आता है. इन द tortoise beetles आर नॉर्मली ब्रासी येलो और ग्रीन. कैसे होते हैं tortoise beetle? दे आर जनरली ब्रासी येलो होते हैं या ग्रीन या हरे रंग के होते हैं, बट दे कैन चेंज टू वायलेट. पर वो कैसे कलर में चेंज कर लेते हैं अपने आप को? वायलेट कलर के अंदर. एंड दे फाइनली ब्राउन ऑरेंज विद इन अ मिनट. एक मिनट के अंदर वो वायलेट से ब्राउन और ऑरेंज में भी अपना कलर बदल लेते हैं विद इन अ मिनट ड्यू टू रिडक्शन इन स्पेसिंग ऑफ लैमेली producing normal interference colors of the beetle. It is noticed that the dehydration causes color change. क्या देखने में आया है कि जो डिहाइड्रेशन होता है वो भी कलर चेंज के लिए उतना ही जिम्मेदार होता है, विच कैन बी रिस्टोर्ड बाय द रिहाइड्रेशन. जो कि अगर दोबारा से रिहाइड्रेशन हो जाए तो वापस से वही कलर वो रिस्टोर कर लेते हैं. In the Hercules beetle, the elytra are yellow. Hercules beetle होते हैं, उनके अंदर जो इलिट्रा जो होती है वो कैसी होती है? पीले रंग की होती है during the daytime and dark black at night due to presence or absence of light respectively. ये हमने देखा फिजियोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल कलर चेंजिंग फिनोमिना, जिसमें कि डे के ड्यूरिंग अलग कलर होता है और नाइट के दौरान अलग कलर होता है. हाई और लो टेम्परेचर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज. मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं. मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं. They involve in production of new pigments and they are observed in large number of insect species. Morphological color changes जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो ontogenic and sexual maturation color change. दूसरे होते हैं होमोक्रोमी. तो सबसे पहले हम देखेंगे ontogenic और sexual maturation color change. In large number of insects, color change occurs from egg to adult and it is called the ontogenic color change. Ontogenic color change क्या है कि अंडे से लेकर के वयस्क का निर्माण होने तक शरीर के रंग में परिवर्तन होता है. इस वाले चेंज को हम क्या कहते हैं? क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली सब चेंज हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे ontogenic. In the red cotton bug, Dysdarchus, color changes from white to yellow in the early and matured egg. Dysdarchus जो होता है जिसको हम कॉटन बग कहते हैं कॉमनली, उसमें क्या होता है जब जो मैच्योर्ड अर्ली एंड मैच्योर्ड एग होता है
उसका कलर वाइट से येलो होता है। येलो टू रेड इन द फर्स्ट इंस्टार निम्फ, और जब वो फर्स्ट इंस्टार निम्फ में बदलता है अंडा तो उसका कलर हो जाता है येलो टू रेड। And formation of the ventral and dorsal white bands in the last instar nymph gradually। और जो लास्ट इंस्टार निम्फ होता है कॉटन बग का, उसके अंदर वेंट्रल एंड डॉर्सल वाइट बैंड्स भी डेवलप हो जाते हैं लास्ट इंस्टार के अंदर। एडल्ट्स आर येलो विद वाइट स्ट्राइप्स। इनके एडल्ट्स कैसे होते हैं? एडल्ट्स येलो कलर के होते हैं जिनके ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ पाई जाती हैं। The yellow and red color is produced by protein pigments। येलो और रेड कलर किससे प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन पिगमेंट से। while white bands are developed from uric acid। और white band किससे डेवलप होते हैं? यूरिक एसिड से। ontogenic color change from egg to adult stages can also be seen in lepidoptera। ये कलर चेंज अपने को लेपिडोप्टेरा के अंदर, जिसके अंदर तितलियां पाई जाती हैं, बटरफ्लाइज एंड मॉथ, उनमें भी कलर चेंज ऑन्टोजेनिक हमको देखने को मिलता है। द डेजर्ट लोकस्ट सिस्टोसर्का चेंजेस फ्रॉम पिंक टू येलो। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया जो है, जो डेजर्ट लोकस्ट है, वो पिंक से येलो में चेंज कर जाता है ड्यू टू ओमोक्रोम्स। ड्यू टू बीटा कैरोटीन सिंथेसिस इट टर्न्स टू येलो। पिंक कलर तो होता है इसका ओमोक्रोम्स के कारण, और जब वो येलो में बदल जाता है, ये येलो कलर किस लिए होता है? ड्यू टू बीटा कैरोटीन सिंथेसिस एज द एडल्ट अटेन मैच्योरिटी। सिमिलर सेक्सुअल मैच्योरेशन रिलेटेड कलर चेंजेस अकर प्रीडोमिनेंटली इन सम ऑडोनेटा। सेक्सुअल मैच्योरेशन पे कि जब वो मैच्योर हो रहा है सेक्सुअली कोई भी इंसेक्ट, तो उसकी बॉडी के अंदर भी कई तरह के कलर चेंज होते हैं। ये कौन से ऑर्डर में देखने को मिलता है? ऑडोनेटा के अंदर, जिसमें आती हैं डैमसेफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाइज। इट इज क्लेम्ड बाय सम वर्कर्स दैट द कलर चेंज इज इंड्यूस्ड बाय सम हार्मोन सच एज इग्डियोसोन इन लेपिडोप्टेरन लार्वी। ये देखने को मिला है, ये पाया गया कि जो कलर चेंज होता है वो किस वजह से होता है? ये किसी हार्मोन के कारण होता है जिसका नाम है इग्डियोसोन, जो कि लेपिडोप्टेरन लार्वा में देखने को मिला, जो कि एक ऑन्टोजेनिक कलर चेंज है। एंड जुवेनाइल हार्मोन इन सिस्टोसर्का। लेपिडोप्टेरा के अंदर तो ऑन्टोजेनिक कलर चेंज जो हुआ वो इग्डियोसोन की वजह से होता है, और सिस्टोसर्का के अंदर जुवेनाइल हार्मोन की वजह से मैच्योरेशन रिलेटेड कलर चेंज होता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कलर चेंज इज द होमोक्रोमी। होमोक्रोमी क्या है? होमोक्रोमी जो है, इसको देखेंगे हम। होमोक्रोमी, सम इंसेक्ट्स दे चेंजेस देयर बॉडी कलर सिमिलर टू दैट ऑफ द बैकग्राउंड्स ऑफ देयर हैबिटेट। कुछ कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने जहाँ वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द होमोक्रोमी एज रिकॉर्डेड इन द निम्स ऑफ ग्रासहोपर। इस होमोक्रोमी का उदाहरण क्या है? ग्रासहोपर के निम्स। Gastrymargus, stick insect Caraceus, larva of hawk moth, luthoi and pupae of Lepidoptera, as the variable wavelength of light stimulate synthesis of melanin, omochromes, carotenoids and other pigments. It is now noticed that a particular neuropeptide secreted by the neurosecretory cells of the brain and ventral ganglia कंट्रोल होमोक्रोमी। होमोक्रोमी किससे पहले हमने देखा? होमोक्रोमी क्या है कि जो कलर चेंज होता है इंसेक्ट्स के अंदर वो उनकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे जिस आवास में वो रह रहे हैं। ये किस कारण से होता है? ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? ये कंट्रोल किया जाता है न्यूरोपेप्टाइड के द्वारा। और न्यूरोपेप्टाइड किससे सिक्रीट होंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल ऑफ द ब्रेन एंड द वेंट्रल गैंग्लिया विच कंट्रोल द होमोक्रोमी। Who suggested this phenomena that these neurosecretory cell and the ventral ganglia they control the homochromy? The scientist's name was S.P.C in 1997.
So this is all about my today's lecture. In my next lecture, I am going to tell you about the significance of coloration, mimicry, camouflage, hormonal regulation of color change mechanism. Thank you.